Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Third year. We have already touched the introductory aspects of the half-life and elimination. Now today we will go through some sort of detailed aspects of these things. First of all, half-life. As we have told previously, remember always it's a time, not a concentration. So the time required by a drug or a prodrug, you can say, to reduce its plasma concentration by 50%. किसके कंपैरिजन में? As compared to its previous referred level during elimination. इसमें बाज़ का वो बाज़ कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है अगर हम इनिशियल लेवल लें, क्योंकि इनिशियल लेवल बाज़ बच्चे ये समझ बैठते हैं जब शुरू में थे, हालांकि उस इनिशियल का मतलब ये होता है कि जब आप हाफ लाइफ को ट्रेड कर रहे हैं तो उससे पहले वाले जो लेवल हैं उससे जब 50% रिड्यूस होते हैं तो वो हाफ लाइफ कहलाती है टाइम. So anyhow, to avoid the confusion, we have now replaced the word previous or referred level instead of the initial level. On the other hand, elimination. Now remember, it's a chemical change in the drug molecule to make the drug inactive for the body. So this inactivity can be achieved either by metabolic changes in the drug, as we have seen in the majority of cases, or through excretion from the body. Now we will go some sort of details of both these things. First of all, half-life. Now let's go this diagrammatic or graphic explanation of the half-life of a drug. Here, for example, when the drug was injected intravenously, at that time, level were almost 4 microgram per ml. And we see after this sort of intravenous injection, immediately the drug is distributed to the various body compartments. So the levels suddenly fall in the plasma. So that is why, because this fall is due to distribution of the drug, we are calling it as a distribution phase of the drug, or here half-life will be labelized a symbol, and the symbol used is half-life alpha. But practically, we start the understanding of half-life from when it will start falling in an equilibrium and a gradual way, when we are observing a straight line fall. For example, here now the levels are 1 microgram. So from 1 microgram we will see what is happening. Because this gradual decline is due to elimination, so we are also labelizing it as elimination phase or half-life beta. Usually when we are using the word half-life, we don't use alpha or beta, we mean elimination phase. So anyhow, from 1 microgram, when it's 50% fall, that is obviously 0.5 microgram per ml. Here, for example, the time required is 12 hours. So we will call it as half-life 12 hours. From 0.5, its 50% will be 0.25. So again, next 12 hours, that is up to 24 hours, total 24 hours, but the time required is only the same 12 hours. So here now again you can appreciate why we have used the word previous or the referred, not the initial, because here the students consider initial this one. So obviously from here 50% this, but next half-life is referring to from this to this 50% part, not the initial one. So to avoid the confusion, we have used the word again, this previous. इसका previous ये है, इसका previous ये है, और अगले का previous जो होगा वो ये बन जाएगा, and so on. ठीक है? So anyhow, here we are observing the half-life is same,
from this to this 12 bar, from here to here 12 bar, from here to here 12 bars. So first half-life, second half-life, third half-life, fourth, fifth, sixth, and so on. This aspect we have already discussed in our introductory lectures. After how much half-life the drug will completely be eliminated from the body, and we have seen that usually after about 9 half-life, almost all the drug is eliminated from the body. Half-life can be calculated from this formula, 0.693 multiplied by 1 distribution divided by clearance. Here actually 0.693 is the log of 2 because it's 50%, that's a two-fold decrease in the drug concentration. So log of 2 is 0.0, almost हम अक्सर का 0.7 ले लेते हैं, दोनों ठीक है. From this formula we can see कि volume distribution is directly proportional to the half-life while clearance is inversely proportional to the half-life. जितना volume distribution ज़्यादा होगा, half-life लंबी होगी, जितनी clearance ज़्यादा होगी from the body, half-life उतनी छोटी रह जाएगी. Now volume distribution तो हम अगरचे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन clearance देख लीजिए एक दफा फिर. Basically the volume. It's the volume of the plasma, जो कि हम जाहिर है कि उसका यूनिट जो लीटर है, volume of plasma which cleared off the drug in a given time, like retained clearance. तो that is why अब जितना भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, it's a 1, 2, 3 जितना भी है लीटर per hour. Usually we can also explain it as it's a rate of elimination in a given time, and per unit time में कितनी drug eliminate हो गई, ठीक है, from the plasma, that is the drug clearance. It's exactly similar to the creatinine clearance, ठीक है. तो formula क्या होता है, the clearance is actually calculated from the rate of elimination divided by concentration, plasma concentration जितनी है, ठीक है. Enter होते हैं from the organ, for example liver is the main site of elimination, दूसरा किडनी में होता है, और भी जगह होती हैं जहाँ से वो एलिमिनेट हो सकती है, इनएक्टिव हो सकती है. सो कंसंट्रेशन फ्रॉम द एंट्रेंस और लेवल उसके बाद लीविंग द ब्लड, दोनों का डिफरेंस निकल आएगा. कितने टाइम में लगा वो रेट ऑफ एलिमिनेशन निकल आएगा. नाउ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि इफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, ऑब्वियसली मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इज प्रेजेंट इन टिश्यू एंड लेस इन द प्लाज्मा. तो इन केसेस में जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह का लार्ज हो, यूजुअली वी नीड हायर डोजेज इनिशियली टू अटेन द प्रॉपर प्लाज्मा कंसंट्रेशन. इस जो इनिशियल हायर डोज हमें चाहिए होती है, इसमें कहते हैं लोडिंग डोज, जो लोड कर देता है, ठीक है. ऐसे कुछ केसेस में ये जो अभी हमने रूल पढ़ा वो अप्लाई नहीं होता. मसलन हमने रूल पढ़ा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज लार्ज, half-life will be longer. If it is less, obviously half-life will be also reduced or the less. अब यहाँ कुछ कंडीशन है रीनल फेलियर. रीनल फेलियर में एक्चुअली टोटल बॉडी जो वॉल्यूम होते हैं फ्लूइड के वो भी कम हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि रीनल किडनी फेलियर है तो ये भी एक्सक्रीशन करने के काबिल उतना नहीं रहता है पहले था. सो दोनों चीज़ हो जाती हैं. नॉट ओनली volume distribution is shortened, at the same time excretion is also reduced. तो इसलिए ओवरऑल हाफ लाइफ तकरीबन ठीक ही रहती है. और डाइजेक्शन खास तौर पर इफ डाइजेक्शन इज गिवन इन केस ऑफ रीनल फेलियर, we will not observe any change in the half life of digoxin in such cases. एक और बात कि यूजुअली हाफ लाइफ डज नॉट अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग. ये नहीं होगा कि अगर एक ड्रग पहले 10 मिलीग्राम ले रहे थे तो हाफ लाइफ की वजह से अगर कोई कम या ज़्यादा हो रही है तो हम डोज को 10 के बजाय 5 कर लें या 20 कर लें. ना, यूजुअली ये डोजिंग इंटरवल का इफेक्ट करती है, ठीक है. तो हम डोजिंग इंटरवल को आगे पीछे कर सकते हैं
कि बजाय कि पहले 8 घंटे बाद दे रहे थे, अब 12 घंटे बाद दे देंगे या जल्दी दे देंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाफ लाइफ अगर लंबी हो गई है हम इंटरवल भी बढ़ा लेंगे। हाफ लाइफ छोटी रह गई है किसी ड्रग किसी वजह से, तो अब हम बार बार देंगे, इंटरवल हम शॉर्ट कर लेंगे, डोज को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक और मसला होता है कि ये हाउ मच हाफ लाइफ अ टाइम इज रिक्वायर्ड टू रीच ए स्टेडी स्टेट, ये भी देखते हैं। पहले हम देख लें कुछ एग्जांपल शॉर्ट हाफ लाइफ की। हमने पहले भी देखी थी एडेनोसिन अमूमन मैक्सिमम ऑफ द टाइम, ये क्यों होती है? ड्यू टू एक कैरिमेटेड अपटेक कर लेती हैं फ्रॉम द टिश्यू, तो साइट पे एक्शन के लिए वो कम ट्रैक रहती है। और दूसरे हेपेटिक क्लियरेंस जल्दी हो जाती है, एलिमिनेशन थ्रू लिवर वो बड़ी रैपिडली होती है। क्लियरेंस अभी हमने देखा रेट ऑफ एलिमिनेशन जल्दी जल्दी हो जाती है, उस वजह से इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी है, लेस देन 10 सेकेंड। इनसे थोड़ी सी ज़्यादा एस्प्रिन 20 मिनट्स, लेकिन ये भी 20 मिनट्स इतनी ज़्यादा नहीं है हेपेटिक क्लियरेंस। सेफलैक्सिन ये आप एंटीबैक्टीरियल पढ़ेंगे जाकर, पेनिसिलिन की सिस्टर ग्रुप कह लें, सेफलोस्पोरिन ग्रुप कहलाता है, मैक्सिमम 55 मिनट्स तक है। इनके भी इसलिए रीनल एक्सक्रीशन हो जाती है। हाइड्रोलाजीन ये वेज़ोडाइलेटर में पढ़ेंगे हाइपरटेंशन में, इनकी भी मैक्सिमम 1 आवर। ठीक है, और इसकी रीज़न भी क्या है? हेपेटिक क्लियरेंस। ये कुछ एग्जांपल है शॉर्ट हाफ लाइफ की। नाउ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस लॉन्ग हाफ लाइफ। अमिडारोन जो है एंटीरिथमिक्स, मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 80 डेज, ये वेरिएबल है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न होती हैं, लेकिन इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ की बेसिक वजह है इसकी स्ट्रॉन्ग टिश्यू बाइंडिंग है, पड़ी रहती है मुख्तलिफ टिश्यूज में, फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, तो हाफ लाइफ में वेरी। नेक्स्ट इज क्लोरोकिन एंटी मलेरियल 214 आवर्स, और रीज़न उसकी लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 13,000 लीटर। डाइजॉक्सिन 50 आवर्स, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 500 लीटर। फ्लोक्सेटिन ये एंटी डिप्रेसेंट है, SSRI होगा, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 2500 लीटर। इमिप्रेमिन ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप होगा, इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब ये देखिए इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ इन वजूहत की बना पर। अनदर रिलेशनशिप आप देख लीजिए कि हाफ लाइफ वर्सेस इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एग्जांपल है एक ड्रग एनालाप्रिल, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर ड्रग इस्तेमाल होती है, ये आपकी बुक में दी हुई है एग्जांपल। अब ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये कंसंट्रेशन ऑफ करिए, ये नीचे दिए हुए कंसंट्रेशन ऑफ 100 फर्ज करें, आप परसेंट ले लीजिए चले, ठीक है, तकरीबन 24 घंटे लगे, ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो अभी भी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो। और रेड इफेक्ट मिलना शुरू हो गया यहाँ तक उसके, ठीक है, कि 100% से तकरीबन हम समझिए कि 95% इफेक्ट हमें मिल रहा है। जो जो लेवल कम हो रहे हैं, लेवल ज़्यादा कम हो रहे हैं, लेकिन इफेक्ट बरकरार रहता है। इवन तकरीबन 24 आवर के बाद भी जो तकरीबन 6 हाफ लाइफ बनती है, एक हाफ लाइफ अब देखिए, ठीक है, अब ये बन गई है 4 आवर्स, नेक्स्ट 4 आवर, हमने पहले भी देखा तो 4 घंटे हाफ लाइफ है, 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ के बाद भी अभी भी लेवल कम हो गए, लेकिन इनहिबिशन उसके बरकरार है। तो कहने का मतलब ये है कि बराह रास्त हाफ लाइफ का कोई ताल्लुक उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नहीं है, इफेक्ट से नहीं है। किसकी हाफ लाइफ छोटी है, लंबी है, इफेक्ट रह सकता है या नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी और रीज़न होती है। सो एनालाप्रिल के हवाले से हम देखेंगे कि इवन हाफ लाइफ छोटी है 4 घंटे से, इट कैन बी गिवन वंस अ डे, बिकॉज इवन आफ्टर 24 आवर स्टिल द इनहिबिशन इज सच वी कैन observe the angiotensin converting enzyme inhibition and persisting the effect as antihypertensive or other uses of its inhibitor. So changes in the plasma concentration of enalapril and decrease in its inhibition जो थी वो ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 24 आवर, दैट इज अबाउट रफली 6 हाफ लाइफ, जैसे पहले कहा, स्टिल द इनहिबिशन इज अप टू 25%। तो होम टेक मैसेज क्या हुआ? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ
and the effective concentration of any drug. ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि हाफ लाइफ के और अंदाज में भी हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं। टाइम ड्यूरिंग राइजिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पीछे हमने पढ़ा ना, एलिमिनेशन में फॉल कर रहा होता है, कभी कभी राइजिंग, वो कब होता है? इन फर्स्ट एलिमिनेशन में जब हमने आईवी इन्फ्यूजन दी हो टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, तब भी हाफ लाइफ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। ये तो थी ना पुरानी एलिमिनेटरी, ये है राइजिंग, फर्स्ट डोज दी, आहिस्ता से राइज कर रहा है, फिक्स डोज दी हत्ता कि स्टेडी स्टेट मिल जाए। अभी देखिए एलिमिनेशन में फर्स्ट हाफ लाइफ 50% रिड्यूस, ठीक है। सेकेंड मसलन यहाँ पे फर्स्ट आवर्स नहीं लिखे हुए, हाफ लाइफ लिखी हुई है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, ठीक है। राइजिंग में भी फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। इसी तरह आप देखते चले जाइए, ठीक, दोनों इकट्ठे शो कर दिए गए, ठीक है। तो तकरीबन जैसे यहाँ पे आपने देखा था 9 हाफ लाइफ खत्म हो जाता है, स्टेडी स्टेट हमें तकरीबन 5 हाफ लाइफ के बाद मिली है, 1 2 3 4 एंड ऑब्वियसली 5। सो आफ्टर 5 हाफ लाइफ स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो बेसिकली स्टेडी स्टेट इज स्टेट ऑफ ड्रग प्लाज्मा लेवल व्हेन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। एक कांस्टेंट लेवल बरकरार रह जाते हैं, अब ना वो कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? कि एडमिनिस्ट्रेशन रेट और एलिमिनेशन दोनों इक्वल हो चुके हैं। जस्ट लाइक योर इनकम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आप देखते हैं कि बैंक अकाउंट्स जो है वो एक जगह मेंटेन रह गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जितनी इनकम हो रही है और जितने आपके एक्सपेंडिचर है वो सेम हो चुके हैं, इसलिए कमी या ज्यादा नहीं हो रही, वो उसकी स्टेडी स्टेट है। ड्रग की स्टेडी यही होगी when the rate of administration becomes equal to the rate of elimination। अब डायग्रामेटिकली पढ़िए कि स्टेडी स्टेट ड्रग प्लाज्मा में कैसी होती है, कि ड्रग कंसंट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंटरिंग हो रही है, दैट इक्वल टू द ड्रग कंसंट्रेशन लीविंग, दैट इज एलिमिनेशन, ठीक है। यूजुअली इसको मेंटेन करने के लिए स्टेडी स्टेट को हमें मेंटेनेंस डोज की जरूरत होती है। मेंटेनेंस डोज हम डिफाइन ही ऐसी करते हैं विच इज given to maintain the steady state concentration। अब ये एग्जांपल भी देखिए कि स्टेडी स्टेट मिल गई है, मुख्तलिफ डोजेज में हमने और मुख्तलिफ रूट से हम देते हैं। आईवी डोज ग्रेजुअली इन्फ्यूजन दी, आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ने चले, स्टेडी स्टेट मिल गई, ठीक है। ओरल डोज, फिक्स डोज, एक आम थेरेपेटिक डोज दी, तब भी वो स्टेडी स्टेट वही मिलेगी, सिर्फ ट्रफ और पीक लेवल ऊपर नीचे होंगे कि जब डोज देंगे तो पीक कर जाएगी, जब फॉल होंगे तो ट्रफ फिर रिपीट कर देंगे, वी गो ऑन रिपीटिंग। यूजुअली ट्रफ से पहले हम रिपीट डोज कर देते हैं, ठीक है, तो फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम, फिर डोज दी, फिर, लेकिन एक स्टेडी स्टेट मिल जाती है। थर्ड, अगर टॉक्सिक डोज भी दें, सिर्फ उसके पीक और ट्रफ लेवल में फर्क पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोज, लेकिन इनकी भी जो आप देखेंगे स्टेडी स्टेट लेवल वो ऑलमोस्ट उसी के दरमियान में आ जाएंगे। तो स्टेडी स्टेट होना और बात है, और मुख्तलिफ डोजेज को मुख्तलिफ रूट से देना वो और बात होती है। स्टेडी स्टेट मोमेंट वही होती है, और हमेशा याद रखिए वो किसी रूट से दें, आईवी से दें, कम डोज में दें, ज़्यादा डोज में, वो 5 हाफ लाइफ ही चाहिए, क्योंकि इस पर MCQs बन जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि रिमेंबर स्टेडी स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी वजह से वो हाफ लाइफ के साल हवाले से चलती हैं, और तकरीबन 5 हाफ लाइफ के बाद वो हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 8 घंटे हाफ लाइफ था, तो 40 आवर्स के बाद स्टेडी स्टेट मिलना शुरू हो गई थी। So as we have seen, reloading is actually that's mainly used for the drugs having longer half life and having large volume distribution. तो ये मोमेंट we usually give to load or to saturate the tissue stores। तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वाइल द मेंटेनेंस, जैसे हमने पहले कहा कि ये वैसे तो स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मेनली डिपेंड क्लियरेंस पे करती है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये दोनों में फ़र्क है बस। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, इंटरवल, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट डिस्कशन।